ने। In a home, before the children are born, there is a wife. और बच्चों के जन्म होने से पहले पत्नी है। And that wife has to first show submission, then only the children can learn it. तो उस पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो पहले अधीनता को दिखाए, केवल तभी बच्चे भी सीखेंगे। It says in Proverbs 14 verse 1. नीति वचन 4 उसका 1 में लिखा हुआ है A wise woman builds her home. कि जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती The है foolish woman tears it down. और जो मूर्ख स्त्री है उसको बिगाड़ती है। Why doesn't it say a wise man builds his house? वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि बुद्धिमान पुरुष घर को बनाता है। Do you know that it is a woman who builds the home? क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो घर को बनाती है By the spirit of submission. और अधीनता की आत्मा के द्वारा। How can the husband show submission in the house? पति जो है अधीन कैसे बन सकता He है may घर be के अंदर? submitting to God in his private life, but it's not so visible. हो सकता है कि अपने गुप्त जीवन में वो परमेश्वर के अधीन हो, In a home, लेकिन हो घर में children see बच्चे देखते हैं the mother submitting to the father. जो माता है वो अपने पति के अधीन होते हुए, Even to an imperfect father, just like Jesus did. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, बिल्कुल सिद्ध नहीं थे उनके माता पिता, फिर भी वो अधीन रहा। That is how a home is built. और वैसे ही वो घर बना That is how a church is built. और वैसे ही हमारी कलीसिया बना। Hebrews 13:17 says, submit to your elders. और इब्रानियों 13 उसके 7 में लिखा हुआ है कि अपने बुजुर्गों के अधीन The रहो। church also, it's through submission that the axe is laid to the root of the tree. और कलीसिया के अंदर भी इसी तरह अधीन होकर हम उस पेड़ के जड़ पर कुल्हाड़ी रख सकते हैं। So, what would you think of a wife who commits adultery every day with different different men? हाँ, वो स्त्री जो हर रोज व्यभिचार करे उसके बारे में क्या सोचते हैं? You say, what a horrible wife. देखो कितना भयंकर एक स्त्री है। I'll tell you a more horrible wife than that. उससे भी ज्यादा भयंकर एक स्त्री के बारे में बताता हूँ। One who does not submit to her husband every day. जो अपने पति के अधीन नहीं होती है। But we are more horrified if this wife is committing adultery every day. लेकिन हम जो है भयभीत होते हैं इस स्त्री से, उसे देखकर जो हमेशा जो है व्यभिचार करती But है। this one who argues and fights with her husband every day and say, oh, that's normal. Why our marriages are like that. जो पति से रोज बहस करते हैं और लड़ाई करते हैं, उससे हम बिल्कुल शांत रहते And the हैं। children acquire that habit from the mother. और जो बच्चे हैं वो इस आदत को माता से अपनाते हैं। And where do you think such people are sitting? और ऐसे लोग कहां पर बैठे हैं? In Christian churches. कलीसिया के अंदर। Bringing the poison of rebellion into the church. बलवा करने के जहर को कलीसिया में लेकर आते हैं। And most churches, they don't even have understanding on this. और ज्यादातर कलीसिया के अंदर इस बात के विषय में समझ ही नहीं है। What does the Bible say? 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थियों 11। 1 Corinthians 11 is divided into two parts. पहला कुरिन्थियों 11 दो हिस्से में बटा हुआ है। The first 16 verses are referring to covering the head. पहला जो 16 वचन है वो सर ढाकने के ऊपर है Women covering their head. कि स्त्रियों को अपना सर ढापना चाहिए, घूंघट ओढ़ना The चाहिए। remaining 18 verses are about breaking of bread. बाकी के जो 18 है वो रोटी तोड़ने के बारे में है। Arrogant men and women, जो proud, arrogant men and जो women, अहंकारी पुरुष या स्त्री रहते हैं, they decide to remove something from God's word and say, we decide what to take, what not to take. और वो निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के वचन में से हटाना, हमें जो अच्छा लगता है वो हम लेंगे, Yeah, we नहीं तो will हटा take the देंगे। breaking of bread. हम जो है प्रभु भोज को यानी कि रोटी तोड़ने को we लेंगे, will not take the first part of that chapter. लेकिन उस अध्याय का पहले हिस्से को नहीं लेंगे। You don't do that with the government. आप सरकार के साथ ऐसा नहीं करते। You will not go around with old 500 rupee, 1000 rupee notes because the government has banned it. हाँ, क्योंकि सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगा दिया, इसलिए 500 और 1000 का नोट लेकर नहीं But जाएंगे। some of you are more afraid of the government than you are afraid of God's word. और आप में से बहुत सारे लोग सरकार से जो है अधिक डरता है परमेश्वर से ज्यादा। You don't say, I don't care what the government says, I'm going to use 500,000 rupee note. आप ऐसा नहीं कहते कि सरकार जो मर्जी कहे मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो 500 रुपए का ही खर्च करूंगा। But when God's word says a woman must cover her head, you say, no, I don't bother about that. लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहते हैं तो हम बोलते कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगी। Why does the Bible ask a woman to cover her head when she prays or prophesies? परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा हुआ है कि स्त्री को अपना सर ढाकना चाहिए जब वो प्रार्थना करे और भविष्यवाणी करे? A woman can pray, she can prophesy. हाँ, स्त्री जो है भविष्यवाणी कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, submission to the man.
लेकिन पुरुष के अधीन होना चाहिए। Because क्यों? it says here in verse 3, और 3 में लिखा हुआ है, just like God is the head of Christ, man is the head of woman. जिस प्रकार से मसीह का सिर परमेश्वर है, वैसे ही स्त्री का सिर पुरुष, Christ is the head of man. और मसीह जो है पुरुष का सिर है। So a man is the head of the woman, पुरुष स्त्री का सिर है, just like the Father was above Jesus when he was on earth. जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिर था जब वो पृथ्वी पर था। How many of you sisters believe that? आप में से कितने बहन लोग इस बात पर विश्वास करते हैं That God has made man the head of the woman. कि परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री का सिर करके बनाया That है? the husband is the head of the wife. How many of you believe it? आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पुरुष स्त्री का सिर है? I'm asking you whether you believe the Bible is the word of God or the word of man. That's all. क्या आप ये विश्वास करते हैं कि ये जो वचन है, पवित्र कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है ये या फिर मनुष्य का? Trust in the Lord with all your heart and don't lean upon your own reason. और परमेश्वर पे पूरा भरोसा करे और अपने जो बुद्धि है उस पर भरोसा ना करे। Then God will direct your paths. तब परमेश्वर आपके मार्गों को दिखाएगा। And therefore it says in verse 10, और 10वें वचन में लिखा है, a woman must have this symbol of authority on her head because of the angels. और उसके अधिकार का अपने सिर पर रखे ताकि स्वर्गदूतों के कारण। Why the angels? क्यों स्वर्गदूतों के कारण? Because this rebellion against authority started with the angels. क्योंकि स्वर्गदूतों ने जो बलवा है उसका आरंभ किया था। The angels in heaven know what happened millions of years ago. और स्वर्गदूत जानते हैं हजारों साल पहले क्या हुआ, How the head of the angels rebelled कि स्वर्गदूतों का जो मुखिया है उसने किस प्रकार से बलवा किया। and says, woman, cover your head. और फिर कहते हैं कि स्त्री अपने सर को ढाके Acknowledge that the man is your head. और स्वीकार करें कि पुरुष जो है Because- वो सिर है। Don't get into the sin of the angels. क्योंकि जो स्वर्गदूत ने पाप किया वही पाप आप ना दोहराएं। But do you know the devil has infiltrated many women around the world? लेकिन जो शैतान है उसने कई Many- बहला फुसला दिया है कई स्त्रियों को। The Hindu women in the villages know this. They और all गांव cover, के they all जो cover हि- their heads. जो गांव की स्त्रियां हैं, हिंदू स्त्रियां हैं, वो इस बात को जानते हैं और वो अपने सर को ढाक के रखती हैं। You see that in India. हाँ, आप भारत में देख सकते हैं घूंघट ओढ़ते हैं वो even लोग। they have more understanding than many Christian women. और वो मसीह लोगों से ज्यादा उनकी समझ है। 100 years ago 100 साल पहले in America, अमेरिका in में every church, women covered their head हर एक कलीसिया में हर एक स्त्रियां अपने सर को ढाकती थी, during ओढ़ती the थी। church service. During church service. और कलीसिया के साथ Every church. हर एक कलीसिया में। But after the Second World War, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद in the around 1950, यानी कि 1950 के बाद a new movement started around the world. एक नई क्रांति जो है फैलने लगी संसार भर में, called Women's Liberation. यानी कि औरतों की आजादी। And a lot of these bad things that begin in the West finally come to India also. और जो भी बुरे चीजें पाश्चात्य कंट्री देशों में होते हैं वो वापस जो है भारत में आ जाती हैं। And women said, we're equal to men. Why should we allow them to be फिर वो above us? स्त्रियां बोलने लगे कि हम पुरुषों के समांतर हैं, बराबर हैं, तो पुरुषों को क्यों हम अधिकार दें। Slowly that spirit came into the church. और फिर धीरे धीरे वो जो है कलीसिया के भीतर आने लगी। After 1950, women started removing their covering. और 1950 के बाद स्त्रियां जो है अपने ओढ़नी को हटाने लगे। And now you go to American churches, almost no woman covers her head. और अब अमेरिका में जाओगे तो वहां पे कोई भी स्त्रियां अपने सर को नहीं ढकती हैं। I've been to a church with 2,000 people. My wife will be the only one sitting there covering her head. और अमेरिका में एक कलीसिया में गए, करीबन 2000 लोग वहां पे इकट्ठे थे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ के So- कोई और वहां पे सर को नहीं ओढ़ी हुई थी। My third son, Sandeep, और मेरा तीसरा पुत्र संदीप, he started a church in his house in California some years ago. और कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने घर के अंदर ही कलीसिया शुरू किया। A lot of American families and all gathered together. और वहां पे बहुत सारे अमेरिकी जो है परिवार आने लगे। It's a mixed church of Americans, Mexican, different people. तो अलग अलग मैक्सिकन और अमेरिकन लोग वहां पे आने लगे। And after some time, कुछ सालों के बाद he began to preach, women must cover their head and they pray. और फिर वो प्रचार करने लगा कुछ सालों के बाद कि स्त्रियों को अपना सर ढक के रखना चाहिए प्रार्थना करते It हुए। was a small church. ये छोटी सी कलीसिया थी, Half the people left आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले गए because the women said, we're not going to do that. क्योंकि स्त्रियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। And in those homes, the woman is the boss of the house, so they dragged their husband and went.
और उनके परिवार में जो है स्त्रियां वहां की बॉस होती हैं, इसलिए वो अपनी पतियों को लेकर चले गए। So when they did not cover their head, they were speaking the truth. I am the head of this house. I'll take my husband and take him where I go. यानी कि वो सर ढाकने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब उस परिवार की जो मुखिया है वो स्त्री है और अपने And पति को लेकर चले गए। when I saw that, और जब मैंने ये देखा, I said, Sandeep, I'm proud of you. मैंने कहा कि बेटा संदीप, मैं तुझ पर घमंड करता हूँ, गर्व करता हूँ, You're a son after my own heart. क्योंकि तू मेरे दिल का पुत्र है। You stand for the word of God even if everybody leaves. क्योंकि तू सब लोग छोड़ के जाने के बाद भी तू वचन के लिए खड़ा रहा। I said, that's how we started CFC 41 years ago. और वैसे 41 साल पहले CFC का मैंने आरंभ किया। The Lord said to me, मेरे से if परमेश्वर ने कहा, everybody leaves you for the truth you stand for, will you still stand for me? हर व्यक्ति, सब लोग तुझे छोड़ दे तो भी तू क्या सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा? I said, Lord, if my wife and I have to stand alone here, we'll stand alone here. तो मैंने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को केवल एक होकर खड़ा होना पड़े तब भी हम लोग खड़े होंगे। I told Sandeep, मैंने संदीप से कहा, this is the best thing that has happened to you. यही सबसे बेहतर चीज है जो तेरे जीवन Now में you हुआ। can establish the church on 100% obedience to God's word, not 90%. अब तूने 100% परमेश्वर की आज्ञा पालन कर कलीसिया का आरंभ किया है, ना कि 99%। That you preach everything in the New Testament, not pick and choose what you like and what you don't like. और तुम्हें जो नए नियम में सब कुछ प्रचार करना है, ना कि जो तुझे अच्छा लगे इधर उधर से चुनकर। And now God has built a wonderful church with many people, Americans, Mexicans, Chinese, all types of people. और अब परमेश्वर ने अब और भी बेहतर और भी बड़ा कलीसिया बना दिया है। अब चाइनीज, मैक्सिकन और अमेरिकन सब है। God was testing him in the beginning. परमेश्वर ने आरंभ में उसकी परीक्षा लिया। Will you, like other preachers, preach to please people, or will you preach my word? क्या तुम दूसरे प्रचारकों की तरह लोगों को खुश करने वाले प्रचारक बनोगे या फिर मेरे वचन में से प्रचार करोगे? God has enabled him to build a wonderful church with wonderful elders. और परमेश्वर ने ताकत दिया उसको एक खूबसूरत अच्छी कलीसिया बनाने के लिए अच्छे बुजुर्गों के साथ। And I have seen through the years in many countries, और मैंने कई देशों में देखा, any woman who has got the spirit of rebellion in her heart जिस स्त्री के अंदर भी, अगर जो कोई भी ऐसी स्त्री है जिनके अंदर बलवा करने की आत्मा है, will teach removing the head covering, तो वो सिखाएंगे सर ढाकना हटाने के लिए। and will teach her daughters to also not wear the head वो अपनी covering. बेटियों को भी यही सिखाएंगे। That is all over the world. और ये पूरे संसार भर में है। Now I am not saying that everyone who covers the head is submitting to their husband. मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई अपने सर को ढापते हैं वो सब अपने पति के अधीन हैं। It can be an empty form for many people. और हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये खालीपन हो। But the thing is, just like everybody who breaks bread is not saying I want to die with Jesus Christ and follow him. जैसे कि रोटी तोड़ने में हर एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना That's चाहता the हूँ। real meaning. उसका असली अर्थ तो यही I है। take this bread and cup to show that I want to die with Jesus to myself. यानी कि मैं रोटी और कटोरे में से पी रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही मरना चाहता हूँ। Everybody doesn't mean it. लेकिन हर एक के अंदर वही मतलब नहीं रहता। Let them not mean it, but we will mean it. हाँ, उनके लिए वो मतलब नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे लिए ये मतलब रखता है। Same way every woman who covers her head is not submitting to her husband. और इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक स्त्री जो अपने सर को ओढ़ती है वो अपने पति के अधीन है, We will do what is right. लेकिन जो सही है हम वो करेंगे। So what I'm trying to say is, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, submission to authority is a very important part of the Christian life. मसीह जीवन के अंदर अपने अधिकारियों के अधीन रहना बहुत जरूरी है। That is how a home is built in a godly way. और इसी प्रकार से हमारा जो है ईश्वरीय तरीके से हमारा घर बना है। A wise woman builds her house. एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, A foolish woman tears it down. और जो बेवकूफ स्त्री है वो उसको तोड़ देती है, बिखेर देती है। We want wise wives in our church. हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में बुद्धिमान स्त्रियां हों, Let the foolish women tear down their houses. और जो मूर्ख स्त्रियां हैं वो अपने घर को बर्बाद करने दो, Learn a lesson from them. और उनसे हम सीख सकते हैं। Don't follow their bad example. हाँ, उनके जो बुरे उदाहरण है उसका पीछा ना करें, उसका That's- अनुसरण ना करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that the truth of your word will sink into our hearts. पिता परमेश्वर, जो तेरी सच्चाई है वचन में उसको हम अंगीकार करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से।